السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المجالس بالأمانة. محترم و معزز دین ملی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے دور حاضر کا بہت ہی حساس اور توجہ طلب موضوع کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو، سارے انسانوں کو آپس میں اتحاد، اتفاق، مل جل کر رہنے کی تعلیم دی ہے، اور عدم اتفاق کی صورت میں، آپسی اختلاف و انتشار میں پڑنے کی صورت میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری قوت ناپید ہو جائے گی، تمہاری حیثیت عوام الناس میں ختم ہو جائے گی اگر اختلاف کرتے رہے اور اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اتحاد کو ختم کرنے کی وجہوں میں سے، یا آپسی محبت الفت کو ختم کر دینے والی وجہوں میں سے ایک وجہ، ایک دوسرے مسلمان کی برائیوں کو واضح کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ آپس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رہتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے، اور اس قدر آپس میں الفت ہو جاتی ہے اور تکلف ختم ہو جاتا ہے، بالکل بے تکلفی میں بہت ساری ایسی باتیں ایک مسلمان دوسرے بھائی کے بارے میں جان لیتا ہے، ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے بارے میں جان لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر میں بہت سارے لوگ، بہت سارے فیملی ممبرز ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کی جو پرسنل زندگی ہے، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اب اس کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی پرائیویسی کو جان لیتا ہے اور اس کو لوگوں میں بیان کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے یا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ میرے بھائیوں گناہ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے لوگوں کا، کہ لوگوں کی رازوں کو جاننے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ کیسے کماتا ہے، اس کی روزی کیسے بڑھ رہی ہے، یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملاقات کرتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، اس کے روزانہ کے معمول کیا ہیں، اس پر بہت سارے لوگوں کی گہری نظر رہتی ہے۔ حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اگر آدمی اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے اس کی کوششوں کو دیکھ کر، اس کی کاوشوں کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتا تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کے ان اعمال کو، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اس پر الٹا وار کرنا چاہتا ہے، اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے، یا لوگوں میں اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بننا چاہتا ہے، یا اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ اور اسے ہم راز کہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں رہتی ہیں، آدمی راز، سب سے پہلی چیز تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں راز کو چھپانا چاہیے۔ کسی بھی آدمی کے بارے میں اگر کچھ پتا چل جائے، برائی ہو، تو خاص طور سے اس کو چھپانا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں: من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ پوشی کی، اس کو چھپایا، اس کو بیان نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا بیان ہے۔ لہذا
किसी मुसलमान को एक दूसरे मुसलमान की टोह में नहीं लगना चाहिए, उसके भेदों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज का अलमिया यह है कि हमारे बहुत सारे भाई आपस में गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद उस गुफ्तगू के दौरान जो बातें हुई हैं उनको दूसरों से बयान करते हैं। मीटिंग की बात हो, किसी खुसूसी मजलिस की बात हो, आपस में गुफ्तगू की बात हो, दोस्तों के साथ गपशराखे की बात हो, ये लोगों में बयान करना मेरे भाइयों अच्छा ही नहीं है। और आजकल इसी वजह से बहुत सारे इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, मोहब्बतें आपस में भाइयों की टूट रही हैं, इख्तलाफ और इंतशार का पूरा माहौल चल पड़ा है और लोग इसके पीछे पड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल मजालिसु बिल अमाना, ये जो मजलिसें हैं, हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, ये अमानत है, अमानत। इनमें खयानत मत करो, इनमें की गई बातों का इफ्शा मत करो, इनको फैलाओ मत, लोगों में वावेला मत मचाओ। और मेरे भाइयों इस जिम्न में ये शरीक हैं, मीटिंग में कोई फैसला हुआ, कोई बात हुई, कोई गुफ्तगू हुई और चार लोगों के माबैन कोई बात हुई, उसको राज में रखना, उसको छिपाना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसलिए कि जब एक नए सिरे से एक जिम्मेदार के तहत वो बात होगी एक अलग चीज है वो, लेकिन आपस में तीन गुट बैठ के बात कर रहे हैं, एक आदमी जाके फैला दे बात, मेरे भाइयों ये चीज अच्छी नहीं है। इससे इख्तलाफ बढ़ता है, इंतशार बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, आपस में इत्तेहाद इत्तफाक पारा पारा हो जाता है। आजकल के मुआशरे में जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी ने हर जगह लगभग अपना मकाम बना लिया है, अपना लोहा मनवा लिया है, इसमें भी बहुत सारे वसाइल ऐसे पाए जाते हैं जिससे एक मुसलमान के राज को खोलने में बहुत आसानी मिल जाती है, एक इंसान के राज को खोलने में बहुत आसानी मिल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दिनों के बारे में फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि उसमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा, अमन में रहेगा, सुकून में रहेगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये वक्त कब आएगा? तो आपने फरमाया, हीन यकथुरुल हरज, जब हरज बढ़ जाएगा। हरज मतलब फितना और फसाद बढ़ जाएगा, कत्ल खुरेजी बढ़ जाएगी, आपसे इत्तेहाद और इत्तेफाक पारा पारा हो जाएगा, तो ये चीजें हो जाएंगी। आपने साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसा कब होगा? आपने फरमाया, हीन ला यअमलु रजुलु जलीसहु, जब आदमी अपने जलीस, अपने हमनशीन, अपने साथी से मामून ना हो, महफूज है। उसका क्या मतलब? वाज़ेह मतलब है कि राज को छिपाना, भेद को भेद रखना, इसमें एक आदमी की कामयाबी है और इसी में एक आदमी के लिए इबरत और नसीहत है और उसमें पैगाम है, मोहब्बतों को तकसीम करने का पैगाम है, उल्फतों को बांटने का पैगाम है। जब आदमी दूसरी की बातों को फैलाएगा नहीं, किसी के ताल्लुक से भी बात हो, जाहिर सी बात आदमी महफूज रहेगा, मामून रहेगा। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने आपस में की गई बातों की हिफाजत करो, दोस्तों के माबैन की गई बातों की हिफाजत करो। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग नौजवान मौजूद हैं जो किसी से उनका अगर किसी से कोई ताल्लुक है तो उसको आम लोगों में बयान करते फिरते रहते हैं, जबकि ताल्लुक बनाना भी औरत से गैर महरम से दुरुस्त नहीं है। उनसे गुफ्तगू करना, उनसे बातचीत करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आदमी करता है तो वो गलत है, लेकिन इसको भी शान के तौर पर अपने दोस्तों में, अपने साथियों में बयान करते, मैंने ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, मेरा इससे ताल्लुक है। मेरे भाइयों, ये भी राज है, भेद है, इसको भी छिपाना हमारी जिम्मेदारी है। पहली चीज तो हमको बचना चाहिए, हराम है क्योंकि, लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी करता है तो उसको छिपा के रखे, किसी की इज्जत को नीलाम ना करे, किसी की इज्जत को बर्बाद ना करे, उसको बेचे ना। मेरे भाइयों, ये तवज्जो की चीज है, बहुत तवज्जो वाला अम्र है, लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए। और इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह गालिबन फरमाते हैं कि इन्ना मिनल खियानती अन तुहद्दिस बिसिर्रि अखीका, ये खयानत है, मजलिस की खयानत है, आपस में साथियों की बैठक की खयानत है कि आप अपने साथी के भेद को आप जाके दूसरों से बयान करो, उसकी चर्चा करो, लोगों में फैलाओ उसको, ये खयानत है। और खयानत मेरे भाइयों, ये मुनाफिक की निशानी है, मुनाफिक की अलामत है। वइदा तुमिना खान, जब अमानत सौंपी जाती है, जब कोई चीज इसको राज बताया जाता है, इसको फैला देता है, और ये मुनाफिक की निशानी है, निफाक की अलामत है। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। आज मुआशरे में कितनी वबाएं फैल रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं, आपस में हर आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा होता जा रहा है। इसकी वजूहात में से एक ये भी वजह है कि हम अपनों की हिफाजत नहीं करते, अपनों की इज्जतों की हिफाजत नहीं करते, और
लोगों की इज्जतों को नीलाम करते फिरते रहते हैं। और एक मोबाइल जिसे हम और आप इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बन गया है। ये रहमत है, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो रहमत है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में गड़बड़ी हुई हमारे लिए जहमत और हमारे लिए अजाब का बाइस बन सकता है। क्योंकि मेरे भाइयों, आजकल के मुआशरे में ये मोबाइल हमारे प्राइवेसी को बहुत ज्यादा गैर महफूज कर दिया है, हमारे आपस में राजों को, भेदों को, बातचीत को बहुत ज्यादा गैर महफूज कर दिया है। एक आदमी अपने भाई से बात कर रहा है, अपने दोस्त से बात कर रहा है, फोन पर गुफ्तगू कर रहा है और बिला उसकी इजाजत के उसकी बात को रिकॉर्ड कर लेता है, उसको महफूज रखता है और लोगों में उसको फैला देता है। ये रिकॉर्ड करना चाहे फैलाए या ना फैलाए, ये रिकॉर्ड करना भी उसकी बगैर इजाजत के दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपसे जो बात हुई आप तक महदूद है। इसको फैलाइए मत, इसको लोगों में नशर मत कीजिए, लोगों को बताइए मत, क्योंकि आप दोनों की बातें हैं। इसको तीसरे से क्या मतलब है? अगर उसको मतलब होता तो वो दूसरों से भी बता सकता था। आपसे जो बताया मेरे भाइयों ये राज है, इसकी हिफाजत कीजिए। आज इसी तरह से एक आदमी किसी को मैसेज भेजता है, टेक्स्ट में भेजता है या साउथ में भेजता है, आवाज में भेजता है, यानी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजता है, वो भी अमानत है। आपके पास उसने मैसेज किया, व्हाट्सएप किया है, सारे लोगों से उसने बयान नहीं किया है। आप उसको राज में रखिए, क्या आपसे गुफ्तगू हुई, क्या उसने भेजा है, आपसे क्या मैसेज में, टेक्स्ट में बात हुई, तहरीर में क्या बात हुई, तो आप उसको अपने राज में रखिए। उसका स्क्रीनशॉट लेकर लोगों में वावेला मत कीजिए, लोगों में फितना का सबब मत बनिए और उसकी इज्जत को नीलाम मत कीजिए। क्या उसने गुफ्तगू किया, ये भी मेरे भाइयों राज में से है, आप इसकी हिफाजत कीजिए। इसी तरह से एक आदमी फोन पर गुफ्तगू कर रहा है अपने भाई से, बहुत सारी बातें कर रहा है, माहौल के ताल्लुक से, मुआशरे के ताल्लुक से, खानदान के ताल्लुक से, बहुत सारी बातें ऐसी कह सकता है, वो बात कर सकता है जो दूसरों को बुरा लग सके। आपने स्पीकर ऑन कर दिया, आपने आवाज ऊंची कर दी, स्पीकर ऑन कर दिया, चालू कर दिया, बहुत सारे लोग बात सुन रहे हैं, वो आपको सुनाना चाहता था, आपसे गुफ्तगू करना चाहता था, आपने उसको आम कर दिया। मेरे भाइयों, ये भी मजलिस की खयानत है, गुफ्तगू की खयानत है, बातचीत की खयानत है, लिहाजा इससे परहेज जरूरी है। मेरे भाइयों, ये चंद चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था जो आज मुआशरे में बहुत बड़ी वजह है आपस में दुश्मनियों की, आपस में इंतशार की, इत्तेफाक और इत्तेहाद को खत्म करने की। लिहाजा हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।